morning, students. Now, this is part 2 of chemical kinetics, and I am your chemistry teacher Swati. And the topic of today is the rate law expression. So, according to the law of mass action, for a chemical reaction, suppose it is A plus B gives you product, according to law of mass action, it will be equal to K, A raised to the power A and B raised to the power B. This A and B are basically what? These are your stoichiometric coefficient. But experimentally it is observed that the rate of reaction is found to independent of the stoichiometric coefficient but depend upon another term, that's alpha and beta, and the sum of alpha and beta is known as the order of the reaction. So instead of writing the stoichiometric coefficient A and B, we are writing the alpha and the beta here. Fine. So rate of reaction will be equal to now K, which is the rate constant or the speed velocity constant, A raised to the power alpha and B raised to the power beta, and A and B are the molar concentration of A and B respectively. K is the velocity constant or the rate constant, and above expression is known as the rate law. Now rate law is basically K, and what do you mean by the rate constant? The above expression is the rate law, and now rate constant is the K, or the velocity constant is K. Now what is rate constant or the velocity constant? It is basically the rate of reaction only. But when it will be known as the rate of reaction? When the molar concentration of the species or of the reactants will become 1 or the unity. So it is defined as the specific rate of reaction when the molar concentration of the reactant is taken to be unity, that is K is equals to rate if A concentration is equals to B concentration is equals to 1. Fine. Now next is the units of rate constant or the specific rate constant for nth order is given is this. Now this expression is given to you, which seems very difficult to you, but this is not at all difficult. See what you have to do. We know that rate is equals to K concentration of reactant raised to the power any of the power. You can write it alpha, beta, or suppose I am considering one reactant only, so I am just taking it as a n. Fine. आप इसे अल्फा भी लिख दे, बीटा भी लिख दे, आपकी मर्जी है. मैंने इसे n लिख दिया. Now rate is what? Rate is concentration upon time. This is what? Rate of change of concentration of reactant or rate of change of product of concentration and divide by time. That is the rate, which is equals to, तो मैंने इस concentration को C की जगह मैं again लिख देती because this R is the reactant. So I have considered the reactant with the symbol R. So again I am writing R here, like R up by T. Rate of change of R by rate of change of T. So because we have to do with the units only, so I have written like this only. So K R raised to the power n. Now if I shift this term to other side, it will be R by T divided by R raised to the power n. Now this R, this 1 and this is n, it will 1 minus n. जब आपकी बेस सेम हो तो पावर ज़्यादा हो जाती है, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस एन हो जाएगा. इट विल बी 1 minus n by t. So अब C, this n is basically the order of the reaction. So for any of the order you can calculate the units for the rate constant K now, and the same formula is written there but in different term, which is written here like 1 upon time, and इस R को वो नीचे लिख दिया उन्होंने 1 upon concentration, तो 1 minus NC and minus 1 हो जाएगा. सो दिस इज़ द सेम थिंग. तो आप यहाँ से यूनिट ईजिली निकाल सकते हैं, या तो आप इस फॉर्मूले को लर्न कर लें या आप इस फॉर्मूले को लर्न कर लें, जो भी आपको ईजी लगे. सो दिस इज़ द फॉर्मूला बाय विच यू कैन कैलकुलेट द यूनिट्स फॉर एनी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. So next is the characteristics of rate constant. Now greater the value of rate constant, faster is the reaction. तो जितनी ज़्यादा आपकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी, रिएक्शन उतनी ही फास्टर होगी. हर एक पर्टिकुलर रिएक्शन की जो है अपना पर्टिकुलर रेट कांस्टेंट होगा एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, और जैसे ही आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर दैट सेम रिएक्शन इट विल चेंज. सो रेट कांस्टेंट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, एंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. सो रेट कांस्टेंट की वैल्यू रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करेगी, उनकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ओनली. फाइन. Now next there are the units. Some units are given here for the 0, first and the second order reaction. You can see in the first order reaction the unit of rate constant is mole per liter per second. For this first order reaction it is only per second. So first order reaction depend नहीं कर रहा concentration पे, but 0 order कर रहा है. Second order reaction mole पर मोल लीटर पर इनवर्स अब सेकेंड ऑर्डर भी कर रहा है अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स.
सो 4.4 एग्जाम्पल है जिसमें आपको गिवन है कि आपको रिएक्शन ऑर्डर जो है आइडेंटिफाई करनी है। अगर आप देखें ये रेट कांस्टेंट गिवन है के एंड लीटर पर मोल पर सेकेंड, तो यूनिट मैच करती है आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन से। एंड सेकेंड में आपको पर सेकेंड गिवन है, सो दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट्स देख के आप बता सकते हैं कि कौन सी ऑर्डर की वो रिएक्शन होगी। नाउ the next is the order of the reaction. Now the important topic, the order of a reaction. So in the rate equation, that is the rate equation which is k is equals to a raised to the power x or y, or it can be alpha, beta, or whatever the terms you can write here. X and y indicate how sensitive the rate is to change in concentration of a and b. Sum of the exponent x plus y gives the overall order of the reaction, whereas x and y represent the order with respect to the reactant a and b. सो ये x और y जो है ये विद रिस्पेक्ट टू दी रिएक्टेंट बताएगा कि उसका क्या ऑर्डर है, लेकिन अगर आप x और y को ऐड कर देंगे तो ये ऑर्डर पूरी रिएक्शन का देगा आपको, ठीक है। तो x एंड y क्या इंडिकेट करता है कि रेट कितना सेंसिटिव है आपकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, जो स्पीड है रिएक्शन की वो कितनी सेंसिटिव है या वो कितनी डिपेंड कर रही है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a और b के ऊपर। सो x अगर a की पावर है तो इट मीन्स x जो है उस रिएक्टेंट का ऑर्डर है और y जो है b रिएक्टेंट का ऑर्डर है। अगर आप दोनों को टोटल करेंगे x और y तो ये रिएक्शन का ऑर्डर आ जाएगा। हैंस द सम ऑफ द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, 1, 2, 3 एंड इवन अ फ्रैक्शन। A zero order reaction means that the rate of reaction is independent of the concentration of reactant. So order ये बताता है कि वो रिएक्शन बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है या नहीं करती है। ज़ीरो ऑर्डर की बात अगर हम करें तो ज़ीरो ऑर्डर के केस में आपकी जो रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसी एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। और अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन दो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेंगे। तो ऑर्डर ये बता रहा है कि ऑर्डर बेसिकली यही बताएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या रिएक्टेंट में डिपेंड करेगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। और जो रेट कॉन्स्टेंट है वो कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता। अगेन रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, फाइन। बट इन जनरल हम यही बोलते हैं कि जो रेट कांस्टेंट है वो इट डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट डजंट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन, फाइन। इट इज़ द रेट विच डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। और वो भी डिपेंड करता है कि ऑर्डर कौन सा है। ज़ीरो ऑर्डर है तो रेट जो है आपका रिएक्शन का वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। फर्स्ट है तो एक पे करेगा, सेकेंड है तो दोनों पे करेगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज़ देयर, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, हैंस द रेट एक्सप्रेशन इज दिस। ठीक है, आपको इस रिएक्शन का ऑर्डर बताना है तो कैसे निकालेंगे। a हाफ विच इज़ x एंड b का 3/2 विच इज़ y से ऐड करेंगे तो आंसर विल बी दी 4/2, हैंस हियर द ऑर्डर विल बी दी 2। इस तरीके से आप a की पावर और b की पावर को ऐड कर देंगे तो आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है a 3/2 and b -1, तो 3/2 -1, so it will be 1/2. Here the order of the reaction is half or it is in fraction. तो ऑर्डर जो है आपका फ्रैक्शन में भी हो सकता है। Now a balanced chemical reaction never gives us a true picture of how a reaction takes place, since rarely a reaction gets completed in one step. It is saying कि कोई भी अगर ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी वो कभी भी किसी रिएक्शन की ट्रू पिक्चर नहीं बताएगी, क्योंकि रिएक्शन जो है बहुत रेयरली होती है जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन जो है आपको ये नहीं बताएगी कि वो रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में होगी, आपकी रिएक्शंस एक से ज़्यादा स्टेप में भी हो सकती हैं। सो जो रिएक्शंस एक स्टेप में कंप्लीट होती हैं उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस, फाइन। एलिमेंट्री रिएक्शंस आर बेसिकली दी सिंगल स्टेप रिएक्शंस। और जब सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस गिव्स अस द प्रोडक्ट्स, द रिएक्शन आर कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। और जब हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एक से ज़्यादा टाइप ऑफ रिएक्शंस, मतलब एक से ज़्यादा रिएक्शन से हमें मिले, मतलब अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है बट उसके अंदर जो रिएक्शन के स्टेप है वो 2 या 3 आ रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। सो सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस, if sequence of elementary reactions gives us the product, the reactions are called the complex reactions, and these may be the consecutive reactions. Example, oxidation of CO2 and H2O passes through a series of intermediate steps in which alcohol and aldehyde and acid are formed. जब हम CO2 and water को when there is an oxidation of ethane to CO2 and water,
तो जब ऑक्सीडेशन होती है इथेन की CO2 एंड वाटर में, तो यहाँ बहुत से सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट स्टेप रहते हैं जिसमें अल्कोहल एल्डिहाइड में और फिर एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, देन CO2 में कन्वर्ट हो रहा है. सो मेनी रिएक्शंस आर देयर विच टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप्स एंड रिवर्स रिएक्शंस इन दी साइड रिएक्शंस ऑल्सो. फाइन. इन रिएक्शंस को हम कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शंस भी बोलते हैं, रिवर्स रिएक्शंस भी बोल सकते हैं, और साइड रिएक्शंस में भी इसको हम कंसिडर कर सकते हैं. एग्जाम्पल, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल यील्ड्स ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल. सो इस तरीके से भी आप रिएक्शंस को कंसिडर कर सकते हैं कि मीन्स एक रिएक्शन से प्रोडक्ट बनने में एक से ज़्यादा स्टेप में भी आपकी वो रिएक्शन हो सकती है. फाइन. और उन रिएक्शंस के अंदर कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शंस भी आती हैं, रिवर्स रिएक्शंस भी आती हैं, एंड साइड रिएक्शंस भी आती हैं. साइड रिएक्शंस भी जिसमें प्रोडक्ट डिजायर्ड की जगह कोई दूसरा भी या बाय प्रोडक्ट बने. फाइन. सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स.